Okay, today we are going to learn how to solve inequalities graphically. So your first question is x greater than equal to 3 and y greater than equal to 2. So first we write the step number 1. Step number 1 is convert inequality into equality. So this is your step number 1. So this will be x equal to 3 and this will be y equal to 2. So after this we can draw the graph. I can use the scale, or you may use graph sheet also if you have. Mark this arrows. This is your x-axis and this is your y-axis, and mark this x equal to 1, this is 2, this is 3, and y equal to 1, this is y equal to 2. So this is 1, this is 2, this is 1, this is 2, this is 3. So x equal to 3, x equal to 3, you know the x equal to 3 will be the line parallel to y-axis. So this is your line, and you may write this x equal to 3. And next is y greater than equal to 2. Y, simply y greater than equal to 2, but you have to draw this y equal to 2. So y equal to 2 will be the line parallel to x-axis. Okay, you have now shown the graph of these equations, but remember we were asked to show inequalities graphically, but till now we have done what? We have shown equalities graphically. So let's begin with the inequalities. So first you see this x equal to 3, you choose any point either left to this x equal to 3, or this step we write as checking. This is checking, and checking means whatever line you are taking. For example, you are taking this x equal to 3. We will check for inequality x greater than equal to 3, but we have to take either the point on left side or right side. You choose any point, it's up to you now. So at 0 0 we are checking. So 0 0 means this origin part. So if I put 0 0 in this inequality, then 0 greater than equal to 3, which is false. So if your equation become inequation become false, so आपको क्या काम करना है कि आपको अब जो शेडेड करनी है इसको वो आप शेडेड करनी होगी. इसका मतलब क्या होता है, विल एक्सप्लेन यू, कि आप इसको इस तरफ नहीं ले जा सकते. अब आपको इसको ऑरिजिन से अपोजिट साइड में लेना पड़ेगा. तो आप एक एरो पुट कर सकते हो कि इस एरो से आपने ये शो कर दिया कि ये जो लाइन की जो शेडिंग होगी वो इस तरफ होगी. और इस तरफ होने का मतलब क्या है, आप ज़रा थोड़ा सोच के देखिए. जो इनइक्वालिटी आप ले रहे हो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब आप 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू लेंगे, कहीं पर भी वैल्यू लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 इंक्लूडिंग 3 ऑल्सो, आप सारी वैल्यू ले सकते हैं. बट x इक्वल टू 3 से आप यहाँ की कोई भी वैल्यू लेते हो, लेफ्ट हैंड साइड की कोई भी वैल्यू लेते हो, तो आपका फॉल्स कंडीशन हो जाएगी. आप फॉल्स कंडीशन नहीं ले सकते, तो आपको ट्रू कंडीशन को ही लेना पड़ेगा. तो इसका मतलब कि ये जो लाइन है आपकी x इक्वल टू 3 वो आपकी इस तरफ शेडेड होगी और ये पूरा एरिया आएगा उसमें. ओके, दूसरी चीज़ चेक करते हैं. जहाँ पर हमारे पास दूसरी इक्वेशन है उसको भी हम 0 पे ही चेक करते हैं. एट 0 0 विच इज़ y ग्रेटर देन इक्वल टू 2. सो 0 डालते हैं तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी आपकी फॉल्स हो जाती है. तो फॉल्स होने का मतलब ये ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगी, ये भी आपकी उस साइड में जाएगी, ओरिजिन से अबव जाएगी. सो अगर आप दोनों चीज़ों को देखेंगे, दोनों जो लाइंस मैंने आपको एरो मार्क किए, अगर आप दोनों को देखते हो तो कुछ ना कुछ एरिया आप देख रहे हो. कुछ ये वाला जो एरिया आपका आएगा, ये कुछ कॉमन एरिया आएगा दोनों में, एंड इसको ये इन्फाइनाइटली होगा, मतलब आप इसको बाउंड नहीं कर सकते हो. इसमें आपका x जो है वो एरो जो डाला था वो इस तरफ जाएगा, और इसका आप डालोगे तो इसका इस तरफ जाएगा. तो आप चाहें तो दो कलर यूज़ कर सकते हैं.
और दो कलर यूज़ ना करना चाहें तो आप एक ही कलर से आप डायरेक्ट उस एरिया को दिखा सकते हो। सो इसका एरिया हम ये मान लेते हैं, इसका एरिया ब्लू वाला मान लेते हैं। तो ये जो कॉमन एरिया आ गया, दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस inequalities, solution of the inequalities. Remember this is the solution of inequalities. So you may write this region, you just simply write shaded region is the solution set of x greater than equal to 3, y greater than equal to 2. Now let's discuss this question number 9. 5x plus 4y less than equal to 20, x greater than 1 greater than equal to 1 and y greater than equal to 2. So first step will be change. You can write convert or change inequality into equality. So accordingly you will get 5x plus 4y equal to 20, and this will be x greater than equal to, you can write this x equal to 1, and this you can write y equal to 2. So we can write two solution for each of the equation. This is x, this is y. So solution is up to you. आपको दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत ऐसी नहीं है कि आप एक स्टेप करके दिखाइए. आप सिंपली यू कैन पुट वैल्यूज़ लाइक x की वैल्यू अगर आप 0 डालते हैं तो y की वैल्यू आपको 5 मिलेगी, y 0 डालते हैं तो x की वैल्यू 4 मिल जाएगी. एंड x इक्वल टू 1 एक लाइन होगी जो कि पैरेलल टू y एक्सिस होगी, और y इक्वल टू 2 एक लाइन होगी जो पैरेलल टू x एक्सिस होगी. अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा, क्या होगा, उसके बाद हम चेकिंग करेंगे. हमारे पास ये XY प्लेन आ चुका है. अब आपको जो शो करना है, दिस लाइन को शो करना है, तो आप इसको पॉइंट मार्क कर सकते हो. 0, 5, this is your first point and this is your second point. So draw the line. So this is the line 5x plus 4y less than equal to, this equal to 20. This is equality. We are doing equality. This is equal to 2. Now we can write here also this. This is, we can remove here. This is 5x plus 4y equal to 20. So this is the line. Now next line is x equal to 1. So x equal to 1 is the line parallel to y axis. X equal to 1, and next line is y equal to 2. So y equal to 2 will be this line. So this you write, this is y equal to 2. So you have shown all the equation on the number line. Remember this, whenever it is equal to, we take this line completely without leaving any space in the line. But if this line is equal to, like 5x plus 4y, if it is less than 20, equal sign is not there, then we draw the line with dots. It means that line will not, this line will not be included. So we'll do one more question based on where only this strictly less than or greater than sign is given. So let's start now. We do the checking. For first one, checking for inequality, we do 4y less than equal to 20. So this is the line. Now you can take any point, either this side or this side, but we always prefer to take origin most of the time if line is not passing through origin. If line is passing through origin, then we should not take this checking point at origin. So we can take any point, and here also you have a choice. You can take any point of this line. This side you can take any point like this, 0 comma minus 2 you can take, and this side like 6 comma 7 you can take, any point you can take. But we take normally 0 0 because this is very easy to check. So this, if you put 0 0, then 0 less than equal to 20, and this is true. So it means this line will be shaded towards origin. So you put this arrow. Now this next line is, for the first line you have done, for x greater than equal to 1 you put 0 greater than equal to 1. So this is going to be
false. For this is for first one, this is for second one. So false means you cannot go towards origin, you have to go in opposite direction. If it is true, आप एरो को इस तरफ ले जाएंगे. अगर ये ट्रू नहीं होता है, दिस इज़ फॉल्स है जैसे इस केस में, तो अब हम ओरिजिन की तरफ नहीं ले जाएंगे, हम उसको उसके अपोजिट साइड में ले जाएंगे. फिर थर्ड पे आते हैं, दैट y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसमें भी 0 पे चेक करेंगे तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये आपका फॉल्स, फिर से फॉल्स हो जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन दूसरी वाली है ये भी ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगी, ये आपकी थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाएगी. तो आप यहाँ पे एरो डाल दीजिए. ओके, इसके बाद अब आपको ये ध्यान रखना है कि इन तीनों लाइनों से कौन सा एरिया है जो कॉमन आ रहा है. अगर वो बाउंड, जैसे इस केस में हुआ था कि वो एरिया बाउंडेड नहीं था, बट यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो ये एरिया बाउंडेड आ जाएगा. जो ये एरिया है इसमें तीनों जो एरोज़ हैं वो इसके अंदर ही आएंगी आपकी, क्योंकि ये वाली एरो है, इसको इधर लोगे. कॉमन, दिस एरिया इज़ कॉमन इन ऑल थ्री इन इक्वेशंस. सो इसमें जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और इसकी तरफ ये अंदर की तरफ हो गया, ये इधर की तरफ हो गई, ये ऊपर की तरफ. तो इसका मतलब ये जो आपको शेडेड एरिया दिख रहा है, दिस इज़ योर कॉमन रीजन, और इसको ही आप सॉल्यूशन सेट बोलते. तो आप लिख सकते हो कि जो ट्राइंगल बन रहा है ABC इज़ दी सॉल्यूशन सेट. सो दिस यू कैन डू लाइक, ये आपको हर एक को शेड करने की ज़रूरत नहीं है, सबको एक साथ दिखाने की ज़रूरत नहीं है. जो कॉमन एरिया है उसको जस्ट हैव अ ग्लांस कि वो कहाँ पर आपका कॉमन एरिया आएगा, और उतने ही पार्ट को आप डायरेक्टली शेड कर सकते हो. अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा और हायर लेवल का क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 है. यू कैन सी इसमें जो इक्वेशंस हैं वो, तो इसको स्टार्ट करते हैं उसी तरीके से. स्टेप नंबर 1, चेंज inequality into इक्वालिटी. तो आप सबसे पहले तो पहला स्टेप ही फॉलो करेंगे हमेशा. तो आप इसको लिखिए 3x + 2y = 150. इसको लिखिए x + 4y = 80. इसको लिखिए x = 15, और इसको आप छोड़ दीजिए. इसका जो मतलब है, इन दोनों इक्वेशंस का जो मतलब है, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही x और y दोनों ही आपके पॉजिटिव होते हैं. तो इसका जो मतलब होता है वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है. तो आप ये देख सकते हो कि आपका जो सॉल्यूशन आने वाला है वो आपका सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा. तो आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए आप टेबल्स बनाइए दोबारा से, एंड फाइंड ओनली 2 पॉइंट्स, नॉट मोर देन 2 पॉइंट्स यू आर सपोज टू फाइंड. So this is x, this is y, and for this I think there is no need because वो x = 15 है, लाइन आपकी पैरेलल टू y एक्सिस ही बनेगी. तो यहाँ पर ज़रा पॉइंट डालते हैं. आप अपने आप से कोई पॉइंट सोच सकते हैं कौन सा पॉइंट हम इसमें ले लें जिससे कि आपका आंसर ईजी आ जाए. यहाँ पर पॉइंट निकालते हुए आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट आप ऐसे मत ले लीजिए जिसको ड्रॉ करने में आपको प्रॉब्लम हो. तो पॉइंट कुछ ऐसे लेंगे जिसको ड्रॉ आप ईजिली कर पाते हैं. जैसे कि अगर मैं x = फॉर एग्जांपल 1 ले लूँ तो y की वैल्यू बहुत वाइड आ जाएगी, तो उतने वाइड को बनाने में डिफ़िकल्टी होगी ग्राफ में. तो कुछ ऐसी वैल्यूज़ लें जिससे कि ये ईजिली कैलकुलेट हो जाए. जैसे x की वैल्यू मैं यहाँ पर जो लेता हूँ वो आपकी 30 ले लेता हूँ. तो x की वैल्यू अगर 30 लेते हो तो y जो है 90, उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 60 बचेगा. 2y से डिवाइड करोगे तो 60, इसका भी आंसर फिर आपका 30 ही आ जाएगा. तो एक इजी सा आंसर आप सोच सकते हो, अपने तरफ से ले सकते हो. दूसरा देखते हैं आप y की कोई वैल्यू या फिर x की वैल्यू दोबारा से आप कुछ डाल सकते हो. सो y की वैल्यू अगर हम 0 डाल देते हैं, y की वैल्यू हम 0 डालते हैं तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो 50 आ जाएगी. सो अब जो भी आप लेने वाले हैं ग्राफ जो बनाएंगे उसमें 10, 20, 30, 40 ऐसे आप ग्राफ बना लेंगे, ईजिली बन जाएगा. तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की जो वैल्यू आएगी वो 20 आएगी. बट अब x की वैल्यू आप y की वैल्यू अब 0 मत लो, बिकॉज 0 लेने से y आपका y की वैल्यू 0 हो तो x 80 हो जाएगा. थोड़ा बड़ा आपको बनाना पड़ेगा. तो आप बेटर क्या है कि y की वैल्यू कुछ आप ले लीजिए 10 करके y की वैल्यू ले लो. तो 10 करेंगे तो ये 40 हो जाएगा. तो y आपने 10 लिया तो ये 40, उधर जाके 40 बचेगा. तो x की वैल्यू आपकी
40 आ जाएगी। सो ये इस तरह से पॉइंट लेना काफ़ी ईजी रहता है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये आपका ग्राफ बन गया। इसके बाद हम अब इक्वेशंस को प्लॉट करते हैं। तो आप थोड़ा सा मेंशन कर सकते हो, दिस इज़ वाई, दिस इज़ एक्स। उसके बाद पहला जो आपके पास पॉइंट है वो है एक्स इक्वल टू 30 एंड वाई इक्वल टू 30। तो आप जैसे ही 30 डालते हैं, 30 और 30 को ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। सो दिस इज़ एक्स 30,0, दिस इज़ 0,30। सो इसको आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, दिस इज़ द लाइन एंड दिस लाइन विल नॉट बी डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन नहीं बनेगी क्योंकि आपके पास ये इक्वल टू साइन भी गिवन है, तो डॉटेड लाइन नहीं बनानी है, रिमेंबर दिस। तो इसको हम लिख लेते हैं, दिस इज़ 3x प्लस 2y इक्वल टू 150। इसके बाद दूसरी लाइन बनाते हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 20 इज़ दिस पॉइंट एंड x इक्वल टू 40, y इक्वल टू 10। आपका ये पॉइंट ऑलमोस्ट कहीं यहाँ पर आ जाएगा। तो थोड़ा रफली आप थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होगा तो चल जाएगा, दैट्स ओके। ग्राफ पेपर लेंगे तो वो डिफरेंस भी आपका नहीं आएगा। सो दिस इज़ देयर एंड इसको आप लिख लीजिए। ये इक्वेशन आपके पास है x प्लस 4y इक्वल टू 80। और थर्ड इक्वेशन जो है आपके पास x इक्वल टू 15 है। 15 आपको 10 और 20 के बीच से होते हुए जाएगी, x इक्वल टू 15 और पैरेलल टू y एक्सिस होगी, तो आप वो भी बना लीजिए। सो आपके पास ये तीन इक्वेशंस आ गई, दिस इज़ x इक्वल टू 15। और तीनों में ही इनइक्वालिटीज़ में आपका इक्वल साइन था, तो ये डॉटेड लाइंस नहीं बनेंगी। अब इसको हम देखते हैं कि ये किस तरफ शेडेड होगा। तो हम अगला स्टेप जो करेंगे हम वो चेकिंग का स्टेप करेंगे। चेकिंग अब आप देख सकते हो कि कोई भी लाइन आपकी ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, तो आप चेकिंग सबकी एट 0 0 कर सकते हो। तो पहली इनइक्वालिटीज़ लेते हैं। फर्स्ट वन जो है आपके पास वो है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150। तो जैसे ही आप 0 0 डालोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 150 विच इज़ ट्रू। तो अगर ये ट्रू हो गया तो पहली इक्वेशन का मतलब है कि ये आपकी शेडेड जो होगी वो इस तरफ होगी। क्वाड्रेंट 1 ही रहेगा सारा कुछ, क्योंकि एरिया आपको पहले मैंने बताया था कि अब जो कॉमन एरिया आएगा वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इन दोनों इन्फॉर्मेशन का जो मीनिंग था। इसके बाद सेकंड इक्वेशन लेते हैं, दिस इज़ x प्लस 4y। इनइक्वालिटीज़ लेते हैं सेकंड वाली, दिस इज़ 80। 0 0 डालते हैं तो फिर से ये आपका ट्रू आ जाता है। ट्रू का इसका मतलब ये भी आपकी फिर ऑरिजिन की तरफ ही जाएगी, तो आप इसको भी एरो से मार्क कर सकते हैं ऑरिजिन की तरफ। चाहे तो 1 2 3 एरो मार्क कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अगर थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी लग रही है समझने में कि कहाँ जाएगा वो, तो आप कुछ ज़्यादा एरोज़ भी शो कर सकते हैं। तो इसमें भी कुछ और ज़्यादा एरोज़ हम शो कर लेते हैं। तो इस तरह से ये एरोज़ आपने शो कर ली। नेक्स्ट जो थर्ड वाली है, थर्ड इक्वेशन जो आपके पास है वो x लेस देन इक्वल टू 15 है, 0 लेस देन इक्वल टू 15। तो ये भी आपका ट्रू हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि जितनी भी लाइन्स हैं वो सभी ओरिजिन की तरफ जा रही हैं आपकी। तो ये भी ओरिजिन की तरफ जा रही है, ये भी ओरिजिन की तरफ जा रही है। तो अब थोड़ा सा वर्कआउट करने की कोशिश करिए कि जो सारी एरोज़ को आप जहाँ देखेंगे तो सब में कॉमन कौन सा आ रहा है। आपको कॉमन याद रखना है कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना है। तो आपको जो कॉमन आ रहा है वो रीजन हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि वो जो कॉमन है वो एरिया आपका ये वाला कॉमन एरिया है। थोड़ा सा शेडेड कर सकते हैं हल्का सा, सो दैट आप उसको ABCD फिर मार्क कर देना बाद में। सो दिस इज़ द कॉमन, यू कैन सी दिस एरो भी आपकी इधर भी आ गई, ये वाली एरो भी आ गई, ये वाली एरो भी आ गई, और तीनों एरोज़ आपकी इस एरिया में आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका जो सोल्यूशन सेट है वो आपका शेडेड रीजन है। अब इसका नेमिंग करना है तो आप नेमिंग ABCD करके मार्क कर दीजिए। आप थोड़ा स्पेस यहाँ पर मुझे थोड़ा कम दिख रहा है, तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C, दिस इज़ D, दिस इज़ E। तो हम यहाँ पे जो जो फाइनली हमें आंसर लिखना है कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो हम इसको लिखेंगे कि एरिया ABCDE इज़ दी सोल्यूशन रीजन। अब सोल्यूशन रीजन का मतलब भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि सोल्यूशन रीजन का मतलब है कि आप इसके बीच में कहीं पर भी कुछ भी पॉइंट ले लें। मतलब अब अगर एग्जांपल ही लूँ मैं, तो 10 और 10 अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर आएगा। ये 10, अगर हम ध्यान से देखें तो 10, आपकी हर एक इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। आप कोई भी x की जगह 10, y की जगह 10 डाल के देख लीजिए, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट नहीं है जो इन सारी इक्वेशन को, इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करे। तो एक रीजियन आता है हमेशा जो कि सारी इक्वेशन को एक साथ
सेटिस्फाई करता है। तो इस आप देख सकते हो कि इस रीजन में आपके पास इनफाइनाइटली पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन इनइक्वालिटीज़ के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। सो दिस इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम जो आप पहले करते आ रहे हो क्लास 10th में, उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। एंड इसकी एप्लीकेशंस बहुत हैं, हम एक दो क्वेश्चंस और करेंगे। उसके बाद थोड़ा एप्लीकेशंस, आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ एप्लीकेशंस देखी थी जिसमें आपने एवरेज वाले क्वेश्चंस किए थे, और इसकी एप्लीकेशंस हायर लेवल पे भी होती है, इंडस्ट्री में बहुत एप्लीकेशंस हैं इसकी, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लास 12th में ये चैप्टर आपका फिर से रिपीट होता है जिसमें आप केवल एप्लीकेशंस करते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, स्पेशली कॉमर्स में ये बहुत यूज़ होता है एंड साइंस में भी यूज़ होता है, बट कॉमर्स में हम ज़्यादा इसका यूसेज देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी बहुत सारी इक्वेशंस आप देख सकते हो। दिस इज x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 है, दिस x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। सो इसका मतलब मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि इसका मतलब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो आप जो भी आंसर निकालेंगे वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालेंगे। तो स्टेप करते हैं। नंबर 1 स्टेप था वो आपका था चेंज inequality into इक्वालिटी। तो आप इसको पहले चेंज करिए। तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये आपके पास हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1, एंड थर्ड वन हो जाएगा आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसके बाद आप सॉल्यूशंस निकाल लीजिए, दो सॉल्यूशंस निकालिए हर एक इक्वेशंस के। x y, दिस इज़ x, दिस इज़ y, एंड इसके लिए भी आप चाहो तो निकाल सकते हो सॉल्यूशन, दिस इज़ x y। सो सॉल्यूशन निकालते हैं तो आप अपने हिसाब से पॉइंट सोच सकते हैं क्या निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर x इक्वल टू 0 लेते हैं तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा, और अगर आप y की वैल्यू 5 लेते हैं तो फिर आपका 10 आ जाएगा। तो आपके पास चॉइस है, आप चाहें तो यहाँ पर आप 0 भी ले सकते हैं, तो आपके पास x की वैल्यू 10 आ जाएगी। यहाँ पर लेते हैं x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1 आएगा, और y इक्वल टू अगर आप x इक्वल टू 0 लेते हैं तो y इक्वल टू 1। यहाँ पर आपके पास x इक्वल टू y आ जाएगा, तो इसका मतलब अगर ये 0 हुआ तो ये भी 0 होगा, और अगर आपने इसको 2 लिया तो ये भी आपका 2 आंसर आ जाएगा। तो ये आप टेबल्स आपने बना लिए। अब इसके बाद हम इनको प्लॉट करेंगे। ये आपका ग्राफ बन गया, अब आप इसके ऊपर प्लॉट करना स्टार्ट करें। सो पहला जो प्लॉटिंग होगी, x इक्वल टू आपका 0 है, y इक्वल टू 5 है। तो थोड़ा सा आप देखेंगे कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 मीन्स दिस इज़ योर फर्स्ट, दिस इज़ द पॉइंट, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 10। तो 10 के लिए थोड़ा सा हमें और एक्सटेंड करना पड़ेगा। दिस इज़ सो बेटर क्या है कि हम थोड़ा सा पॉइंट ही चेंज कर लेते हैं। तो हमने थोड़ा एक और पॉइंट ले लिया कि हमने y इक्वल टू 2 लिया, और x इक्वल टू हमारे पास 6 आ जाएगा इसमें। तो y इक्वल टू 2 आपका ये है, और x इक्वल टू 6 अगर आप देखेंगे तो आपका जो आएगा अप्रॉक्सीमेटली वो ये पॉइंट आ जाएगा। तो आपके पास 2 पॉइंट आ गए, आप इन 2 पॉइंट से लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। सो ये जो ड्रॉ होगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा आपका पॉइंट। दिस इज़ x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब नेक्स्ट है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0। सो दिस इज़ x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट आएगा। इन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे। सो आप इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए, और इसको आप लिखिए यहाँ पर, दिस इज़ x प्लस वाई इक्वल टू 1, एंड नेक्स्ट है आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 2 ये लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा, ये आपका पॉइंट ये आएगा। तो आप इसको ड्रॉ करते हैं तो आपके पास ये जाएगा, ओरिजिन से पास होता हुआ जाएगा, एंड दिस इज़ योर x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो हम चेकिंग का करेंगे। बट आप एक चीज़ देखेंगे कि इक्वेशन जो ये वाली इक्वेशन है एट, हम उसको 0 पे कर सकते हैं, इक्वेशन 1 को 2 को, इनइक्वालिटीज़ 1 और इनइक्वालिटीज़ 2 को जो गिवन है आपको क्वेश्चन में, लेस देन इक्वल टू 10। तो 0 पे 0 लेस देन इक्वल टू 10, ये तो आपका ट्रू आ गया। सेकेंड वाली आपकी जो है वो भी आप 0 पे चेक कर सकते हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 विच इज़ फॉल्स। सो सबसे पहले आप इन दो को लिख लीजिए।
इन दो का आपके पास क्या आने वाला है, तो x इस वाली जो इक्वेशन है आपको ओरिजिन पे सेटिस्फाई उसने किया था, तो इसका मतलब जो इसकी शेडिंग होगी वो इस तरफ होगी। तो इस तरफ 2-3 एरोज आप डाल सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। दूसरी वाली जो इक्वेशन है, दिस इज़ द इक्वेशन सेकंड, दिस इज़ द सेकंड इक्वेशन x प्लस वाई वाली, ये ओरिजिन की तरफ नहीं जा रही है, तो इसका आप एरो थोड़ा सा ऊपर की तरफ डाल सकते हैं। इस तरह से आप इसको एरो डाल सकते हैं। अब थर्ड वाले की बात करेंगे, तो थर्ड वाले की जो चेकिंग है, अब आप उसको ओरिजिन पे नहीं कर सकते हो क्योंकि वो ओरिजिन से ही पास कर रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, आप कोई भी इसकी लेफ़्ट या कोई भी राइट साइड का कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो हम चेकिंग करते हैं उसकी 2,0 पे। तो आपके पास है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 डाली है, y की 0 डाली, लेस देन इक्वल टू 0, तो 2 आपके पास आएगा लेस देन इक्वल टू 0, विच इज़ फॉल्स। तो इसका मतलब ये जो ये वाली लाइन है वो इस तरफ नहीं जाएगी, इसकी सपोर्ट में नहीं जाएगी, वो अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो आप इस तरह से एरोज मार्क कर लेंगे। एंड उसके बाद आप देखिए कि आपका सारी की सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी ध्यान रखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट भी हो और सारी एरोज से कॉमन एरिया निकल जाए। तो वो जो सारी एरोज से कॉमन एरिया निकल रहा है, आप देख सकते हो, उसको बहुत अच्छे से विजुलाइज कर सकते हो कि दिस इज़ दी कॉमन एरिया। आप इसको मार्क कर लीजिए, ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी। सो आप लिखोगे कि ए एरिया ABCD is the required solution, and we will not make dotted lines, we'll make complete line, direct lines, because these all are equal signs given. So this is we will take one more example in which I'll show you if this is equal to sign, then how to solve. ना इस एग्जाम्पल में देखिए, हमने एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लिया अपनी तरफ से कि x प्लस वाई जो है वो लेस देन 4 है एंड x माइनस वाई लेस देन 0 है। सो पहला स्टेप वही होगा कि आप चेंज करोगे, चेंज 1 एंड 2, आप इसको 1 एंड 2 कर सकते हो, चेंज 1 एंड 2 इनटू इक्वेशंस, आप इसको इक्वेशंस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला वाला स्टेप वही है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 आ जाएगा एंड x माइनस वाई जो है वो आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा। कुछ इक्वेशंस और थोड़ी सी ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा और फिजिबल हो जाए, जिसमें हम बोलते हैं कि x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस दोनों का मतलब हो गया, आपका आंसर जो आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो अब आप पॉइंट निकालना स्टार्ट करते हैं, पॉइंट बना लेते हैं इनके, x y, x इक्वल टू 0, y 4, y 0, x 4, इसका पॉइंट बना लेते हैं। दिस इज़ x, दिस इज़ y, 0 0 सेटिस्फाई करेगा, 2 2 ले लेंगे, सेटिस्फाई करेगा। अब इसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ओके, अब इसको प्लॉट करते हैं। अब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अब की बार ये इक्वल गिवन नहीं है, तो लाइंस कैसी बनेंगी, प्लीज़ थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा कि आपके पास जो है वो, आप पहला पॉइंट है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4। सो जो इन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन बनेगी वो आपकी कुछ ऐसी लाइन बनेगी, बट इसको आपको डॉट डॉट से यूज़ करना था, तो ओके मैंने थोड़ा वैसे यूज़ कर लिया। तो डॉट डॉट यूज़ करते हैं, थोड़ा दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं। सो डॉट डॉट में आपको ऐसे शो करना होगा, दिस इज़ 1, दिस गैप, थोड़ा सा गैप दे के आप इसको मार्क करेंगे लाइक दिस। सो दिस गैप्स का मतलब हो जाएगा कि ये जो आपकी लाइन है वो आपकी इक्वल नहीं है। तो थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं इसको। तो ये आप इसको लिखिए x प्लस वाई इक्वल टू 4, और यहाँ पर भी आप x प्लस वाई लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ एक जगह लिख दीजिए चलेगा। फिर दूसरी है x, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे कि x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो जब इसका पॉइंट हम लेंगे तो एक तो आपका पॉइंट 2,2 आपका एक तो यहाँ पर ही आ जाएगा, एक यहाँ पर ही आएगा, एक ऑरिजिन पे जाएगा। तो इसको डॉट डॉट के साथ में आपको रिप्रेजेंट कराना है। तो डॉट डॉट का मतलब हो गया 1, दिस 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 दिस, इस तरह से आपने इसको मार्क कर लिया। दिस इज़ x माइनस वाई इक्वल टू 0 मार्क कर लिया। आप चेकिंग करेंगे, चेकिंग हम एक तो ऑरिजिन पे कर सकते हैं पहली वाली इक्वेशन का, क्योंकि x प्लस वाई जो है वो लेस देन 4 है, तो दिस इज़ 0 लेस देन 4, ये तो आपका ट्रू आ गया। तो इसका मतलब ये वाली जो है लाइन आपकी इसी तरफ जाएगी, ऑरिजिन की तरफ ही जाएगी। दूसरी वाली लाइन में डाल देते हैं, तो चेकिंग उसकी थोड़ी डिफरेंट अदर पॉइंट पे करना पड़ेगा। तो इसकी चेकिंग के लिए आप फिर से मान लीजिए ये पॉइंट ले लीजिए 2,0, तो x माइनस वाई आपके पास लेस देन 0 था, तो 2 माइनस 0 लेस देन दिस, तो इसका मतलब 2 लेस देन 0, तो ये आपका फॉल्स हो गया।
तो इसका मतलब अब आप जो एरिया इसकी जो लाइन को शेडेड करेंगे वो और इस तरफ नहीं करेंगे, इसके अपोजिट में शेडेड करेंगे। सो अब आप दोनों को ज़रा कंबाइन करके देखिए कि कौन सा एरिया आपका कॉमन आ रहा है। तो अब आपका ये जो एरिया है, दिस एरिया इज़ कॉमन। तो आप इसको अब ABCD मार्क मत करिए, क्योंकि अब ये बाउंडेड नहीं है। अब ये बाउंडेड नहीं है, ये बाउंडेड तो हो गया। एक्स वाई जो है आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो y एक्सिस होता है, तो ये तो बाउंडेड है। बट ये दो साइड्स जो आ रही हैं इस ट्राइंगल में वो बाउंडेड नहीं हो रही। तो अब आप इसको एरिया मत लिखिए, बस इतना लिख दीजिए कि शेडेड एरिया इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।